Have you ever wondered about that? Why some of the artists improve so quickly while others struggle for a year? It's not just about a material, not just about a talent, not just about a formal education, formal training. It's just about to draw daily. So today we are going to explore about that why we are draw daily as an artist. It is a very important exercise, very important need, and very important thing that how we can improve ourselves, how we can work on ourselves. So hi, this is Swati. Welcome back to the channel. This is the Viswa Art Gallery. I welcome you all the viewers who have a curiosity about to draw, to just explore the things. They have a thinking like artistic. If even I just want to say that some of the people's they also take it like a hobby. Let's enjoy it. Work on yourself. This is a very important video to all the viewers because as a starting point, practice is very important, and daily draw as an artist, it is a most important thing. In our previous video, we are discussing about how artwork, how a drawing keep our child mentally healthy. So it's not just about the child. It works on each and every person in the world because it's a therapy. Uh, so the first reason is to draw every day is that to train the eyes. As an artist, it is a very important exercise and it is the first step. Practice daily drawing, keep your eye trained. Okay, how you observe the thing, how you look at the thing. Because I'm giving example, people. If I'm saying that people just see the object, see the world, but as an artist, they are not see. They are observing the object. They are observing the world. Okay. So this is the different strategies. When you sketch regularly, you notice that the details while other miss. क्या होता है कि जो डेली प्रैक्टिस जब हम करते हैं तब हम वो डिटेल्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, डिटेलिंग्स हम देखना स्टार्ट कर देते हैं, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरीके से शेडो की शेप है ना, किस तरीके से लाइंस हैं, एंगल्स हैं, किस तरीके से फेस का प्रोपोर्शन है ना, और को नेचर का पैटर्न किस तरीके से है, किस तरीके से ये इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, किस तरीके से ये 3D में चीज़ आ रही है, क्या इसमें प्रिंसिपल यूज़ हुआ है. So this is all about that you trained your eyes, you are observing the things. Also your eye have a ability to see the things, like you just see and observe the detail works in a particular object, particular thing, and also you work on yourself. उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि किस तरीके से आपका वर्क इम्प्रूव हो रहा है. ठीक है, डिटेलिंग्स आप कर रहे हैं, इट मीन्स वो अपने आप में एक रिफ्लेक्शन शो कर रहा है. सेकंड, आपको बता दें, सेकंड स्टेप ये है हमारी. देखो, फर्स्ट स्टेप में हमने पता किया कि हमारी आइज को ट्रेन करता है एंड प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस ही हो रही है. अब प्रैक्टिस बिल्ड्स अ स्किल. अगर आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि प्रैक्टिस जो है आपकी आइज को तो ट्रेन कर ही रहा है, लेकिन आपको स्किल्ड भी बना रहा है. उस चीज़ में स्किल भी आपकी इम्प्रूव हो रही है. ठीक है, व्हेन यू डेली प्रैक्टिस, आपकी स्किल बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी. यू जस्ट सी द ऑब्जेक्ट एंड यू जस्ट वर्क ऑन. बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपने ऊपर काम करना छोड़ देते हैं. क्यों? उनको डर होता है कि उनसे मिस्टेक्स हो रही हैं तो कितनी बार होंगी, और वो उसी तरीके से छोड़ देते हैं चीज़ों को. बट नहीं, मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिस्टिक लाइफ. ठीक है, आर्टिस्ट की जर्नी यही है कि वो मिस्टेक कर करके ही सीखता है, और जब वो मिस्टेक करता है वो उसे रेक्टिफाई करता है, फिर वो उसके ऊपर वर्क करता है. एक टाइम के ऊपर उसकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा वाइड लेवल के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देती है. ओके, सो नेक्स्ट वन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट,
क्रिएटिविटी ज़्यादा आने लग जाएगी। यानी मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट दे फाइंड देयर बेस्ट आइडियाज़ व्हाइल दे आर ड्राइंग। ओके, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि अपने बेस्ट आइडियाज़ हो गए या बेस्ट या कोई भी चीज़ वो डिस्कवर करते हैं ना, तो वो ज़्यादातर चीज़ें डिस्कवर करते हैं जब वो ड्रॉ कर रहे हैं किसी चीज़ को। जब वो ड्रॉ कर रहे हैं तो उनके दिमाग, उनको ड्रॉ करते करते उनका जो थिंकिंग है, अब वो इमेजिनेशन के ऊपर चले गए। वो सोच रहे हैं कि इसको मैं और अच्छा और किस तरीके से बना सकती हूँ, या फिर वो एक स्टोरी बता रहा होगा वो पर्टिकुलर थिंग। जब वो स्टोरी बता रहा होगा तो यू थिंक कि वो आर्ट वर्क कितना अच्छे से वर्क करेगा, है ना, और दूसरों को भी वो एक मैसेज प्रोवाइड करेगा। क्रिएटिविटी का मतलब यही है कि आप कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हो। मान लीजिए, इफ़ आई एम गिविंग एग्जांपल, यू आर ड्राइंग इफ़ यू आर ड्रॉ समथिंग, सिंपल स्केच के अंदर आप एक करैक्टर भी तैयार करते हो, एक स्टोरी भी तैयार करते हो, एक लैंडस्केप भी तैयार करते हो, और एक इमोशनल कनेक्शन भी आप उसके अंदर पैदा करते हो। दैट इज अ क्रिएटिविटी. As an artist, it is a very important point because if you are draw randomly, it is not good. But if you're daily practicing and just focus that, first of all, कोई भी आर्टिस्ट है, चाहे बड़े से बड़ा आर्टिस्ट है, उसकी स्टार्टिंग हमेशा सिंपल स्केच से होती है. ओके, दैट इज द बिगेस्ट थिंग. और सेकेंड, और हर एक जो भी आप सोचते हैं कि यू नो कि किस तरीके से मास्टरपीस बन जाता है, तो वो सिंगल लाइन से मास्टरपीस बनता है. आपको पता है इस बात का? स्टार्टिंग से किस तरीके से चीज़ें होती हैं. हमें कभी लग रहा होगा यार चीज़ें नहीं बन रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा. बट अगर हमने अपनी स्किल को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है तो ये सारी चीज़ें होंगी. आपको सिंपल से स्टार्ट करना है. आपके मन में जो आ रहा है आप उसको कीजिए. बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे डूडलिंग वर्क होता है. डूडल वर्क यू ऑल्सो नो वेरी बेटर. डूडल करने से क्या होता है, ये भी डेली प्रैक्टिस से ही आता है. डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ को देख के कर रहे हो कि ये चीज़ मैंने इस तरीके से बनानी है या ये सेम एज इट इज़ मैंने इसको उतारना है. नो, आर्ट ड्राइंग के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं. डूडल वर्क आपके नॉलेज के लिए बता देती हूँ जिनको डूडल वर्क का बिल्कुल भी पता नहीं है. डूडल वर्क होता है, डूडलिंग करना क्या होता है, गूगल के बारे में सभी ने सुना है. डूडल होता है कि आप किसी के साथ, या मान लीजिए आप म्यूज़िक सुन रहे हैं या फिर आप किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, है ना, बट आपके हाथ पेज के ऊपर चल रहा है. आप कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रहे हो, जो माइंड में आ रहा है वो चल रहा है. बस आपका हाथ एक पानी की तरह चल रहा है. जैसे पानी बहता है ना, आपके हैंड्स मूवमेंट्स उसी तरीके से पेपर के ऊपर चलेंगे. जब वो चल रहे हैं, वो कुछ एक नया क्रिएट कर रहे हैं, वेदर वो कोई मीनिंग क्रिएट नहीं कर रहा है, बट वो आपकी एक प्रैक्टिस वर्क को लेके आ रहा है. वो डूडलिंग कहलाती है. ठीक है. और डूडलिंग कभी कभी ये होता है कि हम उस चीज़ के अंदर इतने खो जाते हैं, अगर म्यूज़िक साथ चला है या फिर आप किसी चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है, तो जिस तरीके से आप उसको करते जा रहे हैं, डूडलिंग करते करते कई बार इमेजिनेशन इतनी डीप चले जाती है कि हमको मज़ा आने लगता है. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर आर्टिस्ट लाइफ. ओके, सो दिस इज़ कि हमारी ड्राइंग जो है क्रिएटिविटी भी हमारे अंदर लेके आती है. ठीक है. और डेली ड्राइंग ऑल्सो मेक कॉन्फिडेंस इन अवर सेल्फ. ठीक है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आती है. और मतलब कि मैं अगर आपको ये कह दूँ कि इट बिल्ड्स अ कॉन्फिडेंस इन अवर सेल्फ एज एन आर्टिस्ट. इफ़ यू ड्रॉ डेली, लाइक आप डेली ड्रॉ कर रहे हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा. नहीं यार, ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो मैं इससे और भी अच्छा कर सकता हूँ, या मैं अपने आर्ट वर्क से एक स्टोरी को टेल कर सकता हूँ. अगर मुझे इस तरीके से लोग समझते हैं तो नहीं, मैं इस चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट करूँगा बाय थ्रू माय आर्ट वर्क. कॉन्फिडेंस जैसे जैसे धीरे आएगा उसी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी. कॉन्फिडेंस ही वो चीज़ है जो कि हमारी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाती है. देखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारी दो तरीके से होती है. एक इंटरनल, एक आउटर पर्सनैलिटी होती है. सो इंटर पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से डेवलप करती है हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल. जब इतना अच्छे से आ जाता है कि नहीं, मैं चीज़ों को अच्छे से कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो मैं औरों को भी बता सकती हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है. सो दिस इज़ द 4 स्टेप्स जिनके ऊपर हमने बात की कि ड्रॉ करना क्यों ज़रूरी है, डेली ड्रॉ करने से क्या क्या हमें हेल्प हो रही है, हमारी क्या हो रही है, आई ट्रेन हो रही है, हम डिटेल वर्क्स को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, हम
इससे हमारी क्रिएटिव आइडियाज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। सो इसीलिए हमें डेली ड्रॉ करना ज़रूरी है। चाहे एक आप बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड आर्टिस्ट भी ले लेंगे, जो कमीशन वर्क करते हैं उनकी बात ले लो, या कोई भी आर्टिस्ट है जो वॉल आर्ट करते हैं, किसी भी तरीके का आर्ट करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं। जिस तरीके से एक एथलीट अपनी मसल्स को ट्रेंड करता है बाय थ्रू द प्रैक्टिस, एक आर्टिस्ट अपने हैंड्स को, अपने माइंड को, अपने आइज़ को ट्रेंड करता है बाय थ्रू द प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप यू ऑल विल understand it. So this is all about the today's video. I hope you all will like it. So please like, share and subscribe with your fellow artists. And let me tell you that also you just tell me in the comment how many times you draw each day. Until the next time, keep creating, keep drawing, keep learning. Thank you.